એવું ચાલે છે બધાની પ્રેક્ટિસ બરાબર હો અમે લોકો 25 સૂર્ય નમસ્કાર કરીએ છીએ મંડે ટુ ફ્રાઈડે એવરીડે દરરોજ સવારે સોરી મારે ગમે ત્યારે અંગ્રેજી આવી જશે એટલે મારે ધ્યાન રાખવું પડે નહીં દરરોજ સવારે 25 સૂર્ય નમસ્કાર કરીએ છીએ મંડે થી ફ્રાઈડે જય શ્રી કૃષ્ણ ગુડ ઇવનિંગ કેટલા લોકો યોગમાં અવેર હોય ને ખરેખર આપણે જેમ ભગવાનની ભક્તિ કરીએ ને આ સ્વાસ્થ્યની ભક્તિ છે આજે મુંબઈમાં વરસાદ ખૂબ છે બકુલભાઈ એમને આજે અમારે 2 દિવસથી હતો જોરદાર તમારે તો 12 માસ વાળા છો ગમે ત્યારે અમે વેધરની મજા લઈ રહ્યા છીએ અને ચેન્જ હોય છે એક દિવસ આ એક દિવસ આ એકચ્યુઅલી મેં બધાને કીધું તો કે આગળ યુએસએ લખજો હું ભૂલી ગયો છું હું લખી નાખું આજે ટોટલ 10 છે ઇન્ડિયા ને અહીંયાના થઈને તમારા ને અમારા થઈને બકુલભાઈ ના આવશે તમારા અમારા ને આપડા હા ભગવાનની કૃપા હોય ને ભરતભાઈ ત્યારે યોગા મેટ પર આવે હા એ વાત સાચી યોગ એટલે યોગ સંજોગ અમારે જો આવવા મીડિયા છે જો બધા જિજ્ઞા આગળ યુએસએ લખી રાખજો એટલે આપણને ખબર પડે મારા માસ્ટર ટીચર એવું બોલે કે જે લોકો પર ભગવાનની કૃપા હોય વરસતી હોય મહેરબાન હોય ભગવાન ત્યારે તમે યોગમાં અવેર હોય યોગમાં અવેર હોય લગભગ બેલેન્સ હોય સાચી વાત છે નહીં ને બાકી અત્યારે આ મોસમમાં ભરતભાઈ કોઈ બેડ છોડે નહીં હા એ વાત સાચી છે અને અગર છોડો બી છે તો ચાય ને ખાખરા ફાફડા લઈને બેસી જાય હા એ વાત સાચી છે વજન વધારવા માટે ને અમારે બી અહીંયા 7:30 થાય ને એટલે બધા આવી ગયા હોય બેસી ગયા હોય નાઈ ધોઈને બેસી ગયા હોય સવારના સરસ અત્યારે તો અમારે ઇવનિંગ હોય એટલે અત્યારે શાંતિ હોય બધાને થોડી તમે માત્ર સૂર્ય નમસ્કાર કરો કે પ્રાણાયામ સ્ટ્રેચિંગ વગેરે સૂર્ય નમસ્કાર એક ઓલ એક્સરસાઇઝ છે ફૂલ બોડી એક્સરસાઇઝ બટ તમે એના સિવાય બીજું શું કરો સોરી આઈ થિંક સાઉન્ડ એક બહુ હેવી આવે છે બેકગ્રાઉન્ડ ભરતભાઈ તમે બધાનું જ્યાં સુધી મ્યુટ નહીં થાય ને ત્યાં સુધી સાઉન્ડ આવે તે કરે છે ઓકે ભરતભાઈ ત્યાંથી આવતો હતો સાઉન્ડ પેલો સ્ટોમ નો તો તમે શું પૂછતા હતા કે પ્રાણાયામ અમે કરીએ કે અમે હા ઓન્લી એક્સરસાઇઝ કરો કે પ્રાણાયામ કરો અમારા 2 અવર્સ ના સેશન હોય અમારું યોગાનું સેશન હોય ને 2 અવર્સ નું હોય એટલે એની અંદર પ્રાણાયામ કરીએ અને વોર્મ અપ કરીએ લગભગ 15 મિનિટ જેવું પછી દરેક કેટેગરીના પોઝિસ કરીએ સ્ટેન્ડિંગ સિટિંગ પછી ની ઉપરના કે આપણે વજ્રાસન વાળા કે ઓન સ્ટમક ઉપરના પછી બેક ઉપરના ઇનવર્ટ એટલે અમે એટલા માટે 2 અવર્સ થાય અને પછી અમારે લગભગ 15 મિનિટની યોગ નિદ્રા હોય એટલે ટોટલ 2 અવર્સ ઘટે છે અમારે ટાઈમ 2 કલાકનો અને સૂર્ય નમસ્કાર નું જે વીકડેઝ ના સેશન હોય ને મોર્નિંગ ના એમાં ખાલી સૂર્ય નમસ્કાર કરીએ થોડા સ્ટ્રેચિસ કરીએ પહેલા અને પછી સૂર્ય નમસ્કાર અને પછી બધા છૂટા બધા જોબે જવાનું હોય ને એટલે બરાબર છે નહીં સરસ 2 કલાકનો ટાઈમ ઇનફ છે હા 2 કલાક એ ઇનફ થઈ જાય ઓકે ભરતભાઈ આપણે સ્ટાર્ટ કરવું હોય તમે કહી શકો છો બાકી કોઈને કશું પૂછવું હોય ઓકે સ્ટાર્ટ કરો વાંધો નહીં હા કરીએ ચાલો હું થોડી પાછળ બેસીશ તાકી મારી યોગા મેટ પ્રોપર તમને દેખાય મારું ડિસ્ટન્સ ઓછું છે લેપટોપ અને મેટ વચ્ચે ચાલો વજ્રાસન ફેસ મસલ્સ હલકા સ્પાઇન સીધી ચેસ્ટ નેક હલકું બંને હાથ નમસ્કાર મુદ્રામાં શોલ્ડર થોડા હિપ લાઇન પાછળની તરફ ખેંચો તાકી સ્પાઇન સીધી થઈ જાય સિંગલ બ્રીથ નોર્મલ શ્વાસ ભરો અંદર ચાલતી ચહેલ પહેલ વિચારો પૂરું અટકાવમાંથી અંદરની તરફ શાંતિ લેવા માટે 2-3 શ્વાસ નોર્મલ ભરવાના છોડવાના આપણે શ્વાસ एक बार हम एक बार सिंगल ब्रीथ भरेंगे पूरा छोड़े पैरों के तलवों तक फील करी रिलैक्सेशन को फील करी सिंगल ओंकार ब्रीदिंग
दोनों हाथों के भी आंखों के ऊपर धीरे से आप खोले, मुस्कुराहट के साथ देखिए, दोनों हाथ अपने घुटने पे। आपके पास अगर टाइम है, डेली 6 मिनट ओंकार कीजिए, मेरे चलेगा आपको जो रिजल्ट दिखता है वो मैच कर लेता है। दोनों घुटने पे, नेक एकदम स्पाइन सीधी, शोल्डर हिप एक लाइन, श्वास भरे नेक अप, श्वास छोड़े नेक डाउन, ब्रीदिंग नेक अप, सीधी डाउन करेंगे हम लोग, ब्रीद आउट नेक डाउन, ब्रीदिंग नेक अप, ब्रीद आउट नेक डाउन, breathing neck center, breathe out right side twist, breathing neck center, breathe out left side twist। यहाँ पे कहीं पे भी spine movement नहीं है, breathing neck center, breathe out right side twist, breathing neck center, breathe out left side twist, breathing neck center, last एक बार, breathe out right side twist, breathing neck center, breathe out left side twist, श्वास भरे नेक सेंटर। अब श्वास छोड़ेंगे, राइट साइड ड्रॉप करें, अपने शोल्डर की तरफ आपके राइट कान को ले जाएं, लेफ्ट शोल्डर बिल्कुल ना हिले, ब्रीदिंग नेक सेंटर, ब्रीद आउट लेफ्ट साइड बेंड, ब्रीदिंग नेक सेंटर, ब्रीद आउट राइट साइड बेंड, ब्रीदिंग नेक सेंटर, ब्रीद आउट लेफ्ट साइड बेंड, breathing neck center, last एक बार, breathe out right side bend, breathing neck center, breathe out left side bend, धीरे से सेंटर। अभी किसी को अगर वर्टिगो का प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइसिस का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है, फुल नेक रोटेट नहीं करना, उसको हाफ सी घुमाना, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, बाकी सब फुल सर्कल करेंगे, स्लो करेंगे, आंखों को ही रखेंगे, पूरा धीरे धीरे थोड़ी को नीचे की तरफ ले, like back and full circle clockwise, 1, जिसको वर्टिगो का प्रॉब्लम है हाफ सर्कल करें, 2, 3, अवेयरनेस के साथ स्लो, बहुत ज्यादा जर्क नहीं देना, एंड रिलैक्स। अब लेफ्ट से स्टार्ट करें, एंटी क्लॉक, 1, 2, and 3, जो भी लोग वज्रासन में कंफर्ट नहीं है, सब वज्रासन छोड़ सकते हैं, दोनों हाथ सामने, दोनों हाथों की हथेलियां मेरी तरफ पुश करें, अच्छे से उंगलियां स्प्रेड करें एंड मुट्ठी को टाइट बंद, फिर से एक बार स्प्रेड करें, शोल्डर से हाथ हल्का रहेगा लेकिन आर्मपिट पे अच्छा स्ट्रेच, उधर हाथ सीधा रहेगा, एल्बो से बेंड नहीं होगा, अच्छे से स्प्रेड करें 5 राउंड एंड टाइट मुट्ठी बंद, अच्छे से स्प्रेड करें, 10 उंगलियां खोले अच्छे से एंड टाइट मुट्ठी बंद, लास्ट एक बार अच्छे से बेंड करें, स्प्रेड करें एंड टाइट मुट्ठी बंद करें। अब क्लॉकवाइज घुमाएं, रिस्ट से 1, 2, कलाई से अच्छे से रिस्ट को क्लॉकवाइज घुमाएं, 3, 4, कोनियां सीधी, 5, एंटी क्लॉक, 1, 2, 3, 4। ये मूवमेंट में शोल्डर पे कहीं पे भी कंप्रेशन नीचे, नेक पे लॉक नीचे एंड 5। फिर से एक बार अपने हाथों की हथेली मेरी तरफ और रिस्ट से अपने हाथ को बेंड करें, अभी फिंगर को हिलाना नहीं, सिर्फ रिस्ट अप एंड डाउन, 1, डाउन, 2, डाउन, 3, डाउन, 4, डाउन, 5, डाउन। दोनों हाथ ऊपर, छत की तरफ प्रेस, हाथों की हथेली छत की तरफ प्रेस, हाथों कान साथ में बट टच नहीं, पेट हल्का अंदर, नॉर्मल ब्रीदिंग, आपके आर्मपिट पे फोकस, शोल्डर पे लॉक नहीं करना, नेक को बिल्कुल ढीला एंड नॉर्मल श्वास भरे छोड़े 5 टाइम, 1, ब्रीथ आउट। जब जब श्वास भरो स्पाइन को थोड़ा लंबा करो, 2, छत की तरफ ऊपर खींचिए, 3, ब्रीथ आउट, 4, ब्रीथ आउट, लास्ट 5, ब्रीथ आउट। हाथों को अंदर की तरफ मोड़े, सिटिंग पर्वतासन, प्रॉपर नमस्कार, अंगूठा लॉक नहीं करोगे, उंगलियां लॉक नहीं करोगे, लास्ट राउंड। आर्मपिट पे अगर स्ट्रेच भी है तो फील करो स्ट्रेच को एंड नॉर्मल ब्रीदिंग, 1,
2 ब्रीथ आउट 3 पूरा मानस के साथ लंबा श्वास अंदर पूरा बाहर ब्रीथ आउट 4 ब्रीथ आउट 5 ब्रीथ आउट दोनों हाथों की हथेली को उल्टा रख दे एंड 10 सेकंड तक धीरे धीरे 90 पे शोल्डर लाइन आना है श्वास बढ़ती जाए छोड़ती जाए नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 अपने हाथों को इस टेंडेंस में बाहर की तरफ स्ट्रेच करें नेक को शेक करें ढलका रखें बिल्कुल भी स्पाइन को बेंड नहीं करोगे टेलबोन से ऊपर उठा के रखोगे एंड होल्ड 1 ब्रीथ आउट सिंपल एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करना कभी सोफे पे बैठ के टीवी भी देख रहे हो वहां पे भी कर सकते हो 2 ब्रीथ आउट 3 ब्रीथ आउट 4 ब्रीथ आउट 5 ब्रीथ आउट धीरे से आपके लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाए एंड राइट हैंड जमीन श्वास भरे लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ स्ट्रेच आपका हिप्स ना उठा वो देखते हुए राइट साइड नीचे धीरे धीरे बेंड करें साइड स्ट्रेच नेक एक्टिव नॉर्मल ब्रीथिंग एंड होल्ड 1 ब्रीथ आउट 2 एल्बो स्ट्रेट ब्रीथ आउट 3 ब्रीथ आउट 4 ब्रीथ आउट 5 ब्रीथ आउट धीरे धीरे वही लय के साथ वापस आए कहीं पे भी ना झटका अपोजिट हैंड को अपने कान के साथ लगाएं लेफ्ट हैंड को जमीन पे स्लाइड करें आपका हिप्स ना उठे उसका ध्यान दें हाथ और कान साथ में नेक एक्टिव नेक को लिटाना नहीं अच्छे से एक्टिव नेक के साथ स्पाइन को फील करो साइड स्ट्रेच फील करो 1 ब्रीथ आउट 2 ब्रीथ आउट 3 ब्रीथ आउट 4 ब्रीथ आउट 5 ब्रीथ आउट इसी लय के साथ वापस आ दोनों हाथ टी शेप में एंड दोनों हाथ आपके हिप्स के पीछे हल्की से फिंगर का सपोर्ट लो और अच्छे से आर्च बैक करना टेलबोन को नेवल की तरफ पुश करना हिप को उठने नहीं देना श्वास भरे चीज को लिफ्ट करें ऊपर की तरफ टेलबोन टक करें नेवल की तरफ आपकी स्पाइन को अच्छे से पुश करें शोल्डर को हल्का रखें शोल्डर को ऐसे कान की तरफ चिपकाना नहीं अच्छे से नीचे की तरफ स्ट्रेच करो चेस्ट को ओपन करो आर्च बैक करो एंड होल्ड छत की तरफ ध्यान नेक कंफर्ट होल्ड 1 2 3 4 5 धीरे से स्पाइन सीधा दोनों हाथ घुटने पे नेवल को स्पाइन की तरफ पुश करो शोल्डर को राउंड करो नेक डाउन एंड होल्ड 1 शोल्डर को राउंड करो पीछे की तरफ अपने हाथों से घुटने को पकड़ लो पीछे धक्का दो 2 ब्रीथ आउट पेट जितना ले सको स्पाइन की तरफ ब्रीथ आउट 4 ब्रीथ आउट 5 ब्रीथ आउट स्लोली सेंटर एंड दोनों पे सीधी दोनों पैरों को बाहर की तरफ फैला दें हाथ का सपोर्ट रखें आपको लुढ़कना नहीं है स्पाइन शोल्डर हिप्स एंड शोल्डर एक लाइन रहे उतना स्पाइन सीधा लाइक हम पीछे जब बैंड कर देते तो हमारा स्पाइन का अलाइनमेंट भी चेंज हो जाता है तो हो सके इतना दंडासन की तरह आपका हिप एंड शोल्डर एक लाइन हाथ का सपोर्ट लो दोनों पैरों में हल्का फासला दो अब अच्छे से हिप से मूवमेंट करो जब वज्रासन में लॉन्ग टाइम बैठते हो आपको एंकल पे उंगलियों पे नी पे प्रेशर आता है थाई पे उसको हटा कर दो नॉन स्टॉप 10 to 20 टाइम कर सकते हो आपके जब से कर रहे हो तो कैपेसिटी के अनुसार दोनों नी को टैप करो स्लो करो फास्ट करो आपकी लेकिन ऑल्टरनेट राइट लेफ्ट नी को टैप करो अच्छे से एंड लेट गो अब श्वास भरें अच्छे से टोस पॉइंट बाहर की तरफ दोनों पंजा मिला लो अंगूठा हिप को मिला लो नी कैप जमीन पे प्रेस ताक मसल जमीन पे प्रेस अपने हिप से लेके हील तक दोनों पैर अच्छे से एक्टिवली जमीन पे प्रेस श्वास छोड़े पंजा फ्लैक्स अंदर की तरफ यहाँ पे भी आपका हील का नी थाई उठेगा नहीं और एक बार 3 राउंड करेंगे श्वास भरे टोस पॉइंट अच्छे से पॉइंट ब्रीथ आउट लेट्स करें लास्ट एक बार टोस पॉइंट अच्छे से छोटी छोटी जो मूवमेंट है आपको 24 घंटा
अंदर की नसाड़े को जाम नहीं होने देती, ब्लड सर्कुलेट अच्छे से बहता है। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बहता है बॉडी के अंदर तो प्योर ऑक्सीजन अंदर की तरफ सेव रहता है। फिर हमें सिलेंडर की जरूरत नहीं। फ्लैक्स, हील को अच्छे से बाहर खींचो, टोस फ्लैक्स करते हैं, नेवल की तरफ खींचो एंड 10 उंगलियां नाक के फन की तरह, इस तरह से सिर्फ फिंगर को बाहर की तरफ 10 उंगलियां, जैसे कोबरा का पोज देखा होगा आपने कभी, नाक का फन देखा होगा, उस तरह से अच्छे से बाहर 10 उंगलियां प्रेस करो बाहर की तरफ एंड रिलैक्स। फिर से एक बार हील पूरा बाहर, काफ मसल्स नीचे की तरफ प्रेस एंड उंगलियां बाहर की तरफ खींचो एंड रिलैक्स। लास्ट एक बार काफ मसल जमीन पे प्रेस एंड उंगलियां बाहर की तरफ खींचो एंड रिलैक्स। मूवमेंट दीदी, सुखासन, दोनों हाथों को इंटरलॉक करो, श्वास भर के ऊपर लगाएं, हाथ और कान साथ में। अभी 10 टाइम हमें मूवमेंट देना है, सिर्फ आपका हाथ शोल्डर से पीछे की तरफ जाएगा, नेक मूवमेंट नहीं होगा, नेक हल्का रहेगा, स्पाइन सीधा रहेगा, हाथ जितना उठा सकते उठाएं। अगली बार जब आओगे तो एक बार स्टेप आता है रस्सी जैसा कुछ हाथ में नहीं है तो दुपट्टा लेके बैठ जाना एंड स्टार्ट 10 टाइम। 1 सेंटर, 2 elbow straight center, 3 center, 4 center, 5 center, 6 center, 7 center, 8 center, 9 normal breathing, 10 and hold। आपके हाथों को जब पीछे खींचा तो एल्बो सीधा एंड नॉर्मल ब्रीदिंग। 1 नेक हल्का, 2 3 4 5 6 एंड रिलैक्स। राइट कलाई को पकड़ ले आपके लेफ्ट हाथ से, शोल्डर की तरफ खींचे, लेफ्ट शोल्डर की तरफ, राइट कलाई नीचे की तरफ खींचे, आपका एल्बो जो है हेड की तरफ छिपा दो। 1 हाथ सीधा, चेंज, 2 आपकी कोहनी को हेड की तरफ छिपा दो, इतना शोल्डर ओपन करें, नहीं कैपेसिटी, धीरे धीरे जितना आपका स्ट्रेंथ है, जितना आपका फ्लेक्सिबिलिटी है करते जाए। अपोजिट स्ट्रेच करो एंड छोड़ दो, और एक स्ट्रेच छोड़ दो, अपोजिट स्ट्रेच एंड छोड़ दो। अब दोनों हाथों को चेस्ट लेवल ऐसे रखें, सारे मूवमेंट हमने नेक के कर लिए, पैर के कर लिए, शोल्डर के कर लिए। अब चेस्ट ओपन, जब जितना अंदर की तरफ आपके हाथ को बैलेंस करोगे आसन उतना ही अच्छा होगा। जितना आसन अच्छा होगा बॉडी शेपिंग बहुत फास्ट करता है, अंदर की जो भी जमी पड़ी बीमारियां है वो जल्दी से निकल जाता है। दोनों हाथ आपके चेस्ट ले, यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं है। शोल्डर को जब पीछे खींचते हो तो चेस्ट पे ओपनिंग देते हैं, भस्त्रिका की तरह श्वास छोड़ना। जिसको भी हाई बीपी है स्लो श्वास भरेंगे, स्लो छोड़ेंगे। जो नॉर्मल है अच्छे से फोर्स के साथ श्वास छोड़े, फेस मसल को खराब किए बगैर। फेस एकदम हल्का रहेगा, यहाँ पे हम फेस की एनर्जी को यूज नहीं करेंगे, हम अपने शोल्डर को ओपनिंग देते, चेस्ट ओपन कर रहे हैं। श्वास भरें, 4 5 6 7 दोनों हाथों के लिए आकाश की तरफ ओपन। 3 to 5 इज नॉर्मल। हमेशा 27 का राउंड कराते हैं। हमारे टीचर बोलते थे 27 का जब राउंड करते हो आपकी कैपेसिटी के अनुसार 27 4 राउंड जैसे कंप्लीट होता है, श्वासों की माला हो जाती है 108। तो हम प्रभु की माला जैसे करते हैं, हमारे श्वासों का भी इस तरह से जाप कर सकते हैं। आपकी अगर स्ट्रेंथ अच्छी है, कैपेसिटी अच्छी है, नॉट जो करे 54 44 के 2 राउंड, और भी अच्छे तो 10 कंटिन्यू करना। ठीक है, दोनों हाथ सामने 27। फिर से एक बार श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए चेस्ट को ओपनिंग दो, हल्का सा एल्बो पीछे खींचना, लेकिन नेक को झटका नहीं देना। कभी भी शोल्डर एंड नेक को लॉक नहीं करना, एकदम हल्का, स्पाइन सीधा एंड स्टार्ट। Last, 3 to 5 is normal।
हाथ की अकेले आकाश की तरफ ऊपर, नेक छूला हल्का, फेस पे एनर्जी को फील करो, चेस्ट को हल्का करो। नेवल की पंपिंग को देखो, नेवल के आसपास जो थ्रॉबिंग हो रहा है, पंपिंग हो रहा है, हार्टबीट जैसा एक साउंड है आपके नाभि के आसपास, वो है आपकी सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जब एक्टिव है 24 घंटे जो कार्य करते हैं आनंदमय वाले भाव के साथ करते हैं, आनंदमय भाव जो है अपना खुला रहता है। तो जो भी कार्य हम करते हैं मशीनरी नहीं होता, हम अवेयर होते हैं। अगर आप पानी भी पी रहे हो, आप अवेयर होते आप क्या कर रहे हो, तो हर कार्य में आपका मन होता है, वो मन हैप्पीनेस वाला होता है। सोलर एनर्जी एक्टिव होना बहुत जरूरी है। दोनों के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बरकरार रहता है। जब आपका सोलर एनर्जी एक्टिव है, आप कॉन्फिडेंस के लिए कभी किसी के हाथ की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, खुद के बेस्ट पार्टनर आप खुद बन जाओगे। श्वास भरे, नेक हल्का रखें। झटका अच्छे से। लास्ट जो राउंड है, अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, कैपेसिटी अच्छी है, हाई बीपी से परेशान नहीं हो तो फास्ट करना है। अगर आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, अल्सर है, कभी हाल ही में कोई सर्जरी है पेट के लिए, तो आपको स्लो करना है। फिर आपको फास्ट नहीं जाना, करो जरूर लेकिन स्लो करो, रिदमेटिक करो, अपनी जैसी नेचुरल जो होती है उसी तरह से लयबद्ध भरो इन छोड़। दोनों हाथ अपने घुटने के ऊपर। यहाँ पे हमें फास्ट हल्का सा नेवल आगे की तरफ पुश करते हुए श्वास भरोगे, हल्का सा नेवल अंदर की तरफ पुश करके श्वास छोड़ोगे। बहुत ज्यादा नेक को झटका नहीं दोगे, लेकिन हल्की नेक मूवमेंट करोगे। लास्ट राउंड। एंड अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो थोड़ा फास्ट स्टार्ट। क्या चल रहा है? हाथों की अकेली या तो आकाश की तरफ ऊपर, या तो दोनों हाथों को इंटरलॉक करके प्राण मुद्रा बना ली। नेवल के आसपास हल्का छोड़ दे हाथों को। पूरा ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पे। 5 टाइम श्वास भरना छोड़ना, ना मशीनरी, ना चेक, ना झटका, ना फोर्स, ना कोई खिंचाव। नेचुरल ब्रीथ को फील करते अंदर जाती श्वास को देखो, बाहर निकलती श्वास को देखो। पूरा शरीर लाइट हो जाता है, लाइट एनर्जी का वेव आपके अंदर की तरफ जब ब्लड सर्कुलेशन के साथ एनर्जी वेव है तो बारीक से बारीक नस नाड़ियां ओपन होती है। कितनी भी स्पीड पे भाई ये आपने इंप्रूवमेंट आता है। जब आपकी स्टिफनेस दूर होती है तो जॉइंट से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है वो आपके अंदर कभी होती नहीं है, ऑटोमेटिकली फ्लो हो जाती है, बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है। मेरी श्वास भरेंगे, धीरे छोड़ेंगे, दोनों पैरों को इस तरह से खड़ा कर लें। 2 सेकंड ऐसे बैठ जाए। अगर आपके पैरों में, आपके एंकल पे कहीं पे भी प्रेशर तो इस तरह से दोनों पे टैप करें। इस बार आपके पैरों को मूवमेंट दें एंड खड़े हो जाओ। आज हम करेंगे सूर्य नमस्कार जो 12 स्टेप का, ओनली 4 टाइम मैं कराऊंगी। आप करते हो ज्यादा, लेकिन काफी लोग ऐसे भी होते हैं जिसकी प्रैक्टिस रेगुलर नहीं है, तो 3 to 4 सूर्य नमस्कार उनके लिए इनफ। तो हम 4 राउंड करेंगे नॉन स्टॉप एंड फिर हम अगला आसन करेंगे। धीरे से स्ट्रेच। अगर अभी भी आपके थाइस पे, नी पे, हील पे, टोस पे कहीं पे स्ट्रेच है, क्रैम्प है, तो हल्का हल्का मूवमेंट दे दें एंड आसन पे खड़े हो जाएं। जिसको भी सूर्य नमस्कार नहीं करना है, बैठ के सेम राउंड रिपीट कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो। बस का आप दिन में 500 बार भी कर सकते हो अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हो। अगर आप नॉर्मल हो, अंदर की तरफ कोई भी माइंड से रिलेटेड कोई बीमारी है तो भी निकल जाता है, अस्थमा है तो भी निकल जाता है। अगर आपका नॉस्ट्रल बार बार ब्लॉक हो जाता है तो भी उसमें फायदा होता है। तो बस्ती का जो सोलर एनर्जी एक्टिव करने के साथ साथ अंदरूनी सारी जो भी बीमारियां गैस के रिलेटेड है
वो निकाल सकते हैं। आसन से खड़े हो जाओ और आसन से आगे आ जाओ। हाथ जोड़े, आंखें बंद, दोनों पैर जॉइन, शोल्डर नेक हल्का, नॉर्मल ब्रीदिंग, लंबा श्वास लेकर भरें, पूरा छोड़ो, पैरों के तलवों तक रिलैक्सेशन दो, पूरा शरीर रिलैक्स, फुल बॉडी रिलैक्स। अर्ली मॉर्निंग का विजुअलाइजेशन करो, सूर्य के तेजस्वी किरणों का अपने अंतर्मन से ध्यान डालो। तो एक बार बोलेंगे सब साथ में, ओम सूर्याय नमः। साथ में साउंड अपने माइंड सूर्य के तेजस्वी किरणों के साथ जोड़ दो। विजुअलाइज करें आपके क्राउन से वो किरण आपके अंदर आ रही है, पूरे शरीर को तेजस्वी प्राण में बना। साथ में बोलेंगे ओम सूर्याय नमः। पहला जो आसन है नमस्कार आसन, नमस्कार मुद्रा। फर्स्ट जो अपना आसन है सिंपल नमस्कार मुद्रा में फेस हल्का, स्पाइन सीधा, शोल्डर में पेट लाइन, दोनों ही जॉइंट अच्छे से पैरों को जॉइंट रखना है। अगर आपके घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है तो हल्का सा पैर को ऊपर रखना है। सेकंड जो आसन है अपना, दोनों हाथ कान की सीधे ऊपर। जैसे आपने कान की सीधे ऊपर उठाया तो हल्का सा हिप को बाहर की तरफ पुश करो एंड बैक करो। नी बेंड नहीं करोगे, हाथ को कान से अलग नहीं करोगे। हाथ और कान की जो दोस्ती है बनी रही। आपका मुंह भी ज्यादा पीछे चला जाए, आपका हाथ ज्यादा पीछे चला जाए, ऐसा नहीं करना। कितना भी आपका बॉडी फ्लेक्सिबल है लेकिन फिर भी आपको हाथ और कान जितना चाहते हो पीछे की तरफ चलना। चेस्ट ऊपर, धीरे से सेंटर, दोनों हाथों को खोल दे, हथेलियां बाहर की तरफ। स्लोली श्वास छोड़ते छोड़ते सबसे पहले हिप शोल्डर एक लाइन, समकोणासन डाइनिंग टेबल पे जैसे आपका स्पाइन का लेंथ दे आगे की तरफ, स्पाइन सीधा, पेट जरा अंदर। यहाँ पे फ्यू सेकंड रुकिए ताकि आप आपके पोस्चर को समझ पाए। हील को प्रेस करें, धीरे धीरे स्टमक को या चेस्ट को थाइस की तरफ ले जाए एंड दोनों हाथ जमीन की तरफ नीचे। हो सकता है आपका हाथ काफ तक जाए, हो सकता है आपका हाथ नीचे तक जाए, हो सकता है आपका हाथ हील तक जाए। जैसे जितना आपका आज का है उसको देखते हुए धीरे धीरे आगे जाना है। कहीं पे भी शोल्डर नेक को लॉक नहीं करेगा। अब स्लोली श्वास छोड़े, हिप पर प्लीज करें नेक डाउन। फ्यू सेकंड रुके यहाँ पे श्वास छोड़ के हस्त पदासन हल्का नी बेंड करो। राइट लेग को आगे रखो, लेफ्ट लेग को पीछे ले, पंजा फ्लैट कर दो, नी जमीन पे ड्रॉप कर दो। फ्रंट लेग का अलाइनमेंट देखो, आपका हील ये है, आपका घुटना इस तरह से आगे नीचे। ये पोस्चर सूर्य नमस्कार पे बहुत बार लोग करते हैं लेकिन यहाँ पे कभी ना कभी आपका नी कैप चेंज करने का जो डॉक्टरों की ज्यादा चलती है, घुटने बदल रहे, बहुत सुना होगा। तो ये पोस्चर बहुत गलत है। इवन आपका उठने बैठने का तरीका भी, घुटने को आगे पुश करके बैठते उठते हो तब कभी ना कभी आपको नी कैप पे हार्म होगा। तो अलाइनमेंट देखना हमेशा, आपका हील नी एक लाइन, पीछे वाला पैर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, कितना आप फ्लेक्सिबल हो उसके हिसाब से स्लाइड करें। जरा सा चेस्ट लेग अप, ब्रीदिंग, बहुत ज्यादा नेक पे लॉक हो जाए उतना ऊपर नहीं, पर हल्का सा चेस्ट के आगे की तरफ चेस्ट को पुश कर पाओ, हल्का सा आपके पैरों को अंदर की तरफ प्रेस कर पाओ, इतना ऊपर। अब दोनों हाथों का सपोर्ट ले, तीनों पंजा यहाँ पे एक लाइन, धीरे से पीछे वाला पंजा पहले फ्लेक्स कर, नी को स्ट्रॉन्ग उठा ले जमीन से, फ्रंट लेग को पीछे लेना है, हाई तक। आपका नी, आपका हील, आपका हिप्स, आपका शोल्डर अच्छे से एक लाइन में। आपका शोल्डर हिप जब एक लाइन में है तब पीछे वाले पैर को हैमस्ट्रिंग से ऊपर पुश करें, दोनों हाथों के बीच में ध्यान, कहीं पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं लेना, टच नहीं लेना। अगर कोई कंफर्ट नहीं है तो इस तरह से भी होल्ड कर सकते हो, सिर्फ अपनी आर्म तक की एनर्जी को यूज करो, अच्छे से हथेली प्रेस करो। अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, कोर स्ट्रेंथ अच्छी है, आर्म स्ट्रेंथ अच्छी है तो हाई प्लांक हो सके। ओके, अब घुटना जमीन पे ड्रॉप करें, हाथों की हथेली प्रेस करें, स्टमक को जरा अंदर कीजिए, चेस्ट लाइन के अंदर। अष्टांग नमस्कार, साष्टांग दंडवत। आप अगर स्वामीनारायण भगवान में मानते हो तो ये हम नहीं करते थे बचपन, आज भी करते हैं अगर मन में जाते हो। ऊपर भुजंग आसन, भुजंग आसन में दोनों पंजा एंकल से प्रेस करो, शोल्डर को ऐसे नहीं रखोगे, शोल्डर को अच्छे से नीचे की तरफ स्ट्रेच करो, सामने देखो, बहुत ऊपर नहीं देखा चलेगा, नेक पे प्रेशर नहीं लिया चलेगा। हाथों की हथेली को प्रेस करो, एल्बो पूरा स्ट्रेट नहीं करता, नाभि तक उठने की कोशिश एंड होल्ड। धीरे से हिप को ऊपर लिफ्ट करो, फिर से एक बार पंजा फ्लैक्स करो एंड माउंटेन पोज, पर्वतासन।
हाथों की हथेली जैसे जमीन पर प्रेस है या हील को पीछे प्रेस करो। आपके दोनों पैर कितने एक्टिव रखो कि आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स बाहर की तरफ पुश रहे। हिप को छत की तरफ ऊपर उठाए। अब यहाँ से जो हम अगला राउंड लेंगे अश्व संचालन का, लेफ्ट लेग का, तो बहुत लोगों का पैर यहाँ पर रह जाता है, ठीक है, तो यहीं से सीधा हम झुक जाते हैं। ये गलती हम नहीं करेंगे। जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी है डायरेक्ट दोनों हाथों के बीच में आएंगे। अगर लगता है कि नहीं हम इतना बड़ा जंप नहीं कर सकते कि हमारा लेफ्ट लेग सीधा दोनों हाथों के बीच में जाए, तो फिर बेनी को ड्रॉप कर दो, लेफ्ट लेग को आगे बढ़ो। समझ आया? हो गया ना इजी? फिर से आपका राइट लेग स्ट्रेट कर, नेक्स्ट स्टेप होल्ड, दोनों पैर जॉइंट फ्लेक्स करें पंजा, दूसरा पैर भी आगे ले आए, पेट हल्का सा अंदर खींचिए, स्टमक चेस्ट को मिलाए थाइस के साथ एंड लेट डाउन, हल्का नी फोल्ड, स्लोली नमस्कार मुद्रा में ऊपर, फिर से अपना हाथ हल्का साथ में चेस्ट को लिफ्ट कर ऊपर की तरफ एंड नमस्कार रिलैक्स। जैसे नमस्कार में वापस आए, फ्यू सेकंड का रेस्ट लो, सिटिंग स्टैंडिंग तड़ासन। हम तड़ासन में जब खड़े हैं तो आपका हील आपका अंगूठा अच्छे से जॉइंट, आपके पैरों की 10 उंगलियां रिलैक्स, लेकिन पैरों का तलवा अच्छे से जमीन पे प्रेस, नी को हल्का सॉफ्ट रखें, नॉर्मल सांस भरो छोड़िए। हर बार कोई भी आसन करते हो, कोई भी आप वार्म करते हो अपने बॉडी को, तो फ्यू सेकंड का रेस्ट दो, सिंगल पिक नॉर्मल करो और 3 करेंगे। कैपेसिटी है सब, अगर करना चाहते तो कंटिन्यू 3 और करेंगे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, दोनों हाथों को कान की सीध में उठाए, हील प्रेस करें, हल्का सा हिप को, थाइस को, फ्रंट थाई को बाहर की तरफ पुश करें एंड बैकवर्ड होल्ड, धीरे से सेंटर आए, नमस्कार मुद्रा छोड़ दी, हाथ और कान साथ में, हिप को पीछे पुश करो, समकोणासन। आपका स्पाइन इतना लंबा करो कि आपका हिप शोल्डर नेक एक लगा, और धीरे धीरे वहां से सबसे पहले स्टमक को, चेस्ट को थाइस पे लगा, फिर आपके हाथों को उठाओ एंड दोनों हाथों को दोनों पैरों के पंजों के बगल में रखो एंड लेट डाउन। श्वास छोड़ के रुके यहाँ पे, हल्का नेक अप, नी फोल्ड, लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग पीछे। पहले की जो दुश्मनी है, हम 12 स्टेप का एक नमस्कार जोड़ते, वो लोग 24 स्टेप का एक नमस्कार जोड़ते थे। तो अब लेग चेंज करोगे, राइट लेफ्ट आगे रखा, राइट पीछे लिया, सेम पोजीशन, आपका हील भी एक लाइन पीछे वाला, बट आपके अकॉर्डिंग आपकी जो सेंस है, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, कितना पीछे स्लाइड करें एंड चेस्ट नेक को ऊपर उठाएं, ब्रीथ, दोनों पैर पीछे, पहले पंजा फ्लेक्स करें पीछे वाला एंड लेग को स्ट्रॉन्ग करो, हो सके इतना पीछे वाले पैर के हमसा को ऊपर की तरफ पुश करो एंड दोनों पैर पीछे। हाई प्लैंक में भी आपका अलाइनमेंट अगर आप देखना चाहते हो, पांव शोल्डर एक लाइन, आपका हील टोज एक लाइन, पेट हल्का सा अंदर एंड लेग को ऊपर की तरफ पुश करके लेग स्ट्रॉन्ग एंड होल्ड 1 2 3, नी ड्रॉप करें, चेस्ट एंड चिन को लगा, पंजा फ्लैट करें, भुजंगासन में शोल्डर को रिलैक्स रखें, चेस्ट को ऊपर की तरफ पुश करें, चेस्ट को बाहर की तरफ हल्का प्रेस करें, नेवल तक उठने की कोशिश, नेक एकदम हल्का, बहुत ज्यादा पीछे चलने की जरूरत नहीं। हम जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो बॉडी वार्म करते हैं, सूर्य नमस्कार एक वार्म अप एक्सरसाइज है, तो अच्छे से आपकी जितनी स्ट्रेंथ है, जितनी कैपेसिटी है, पंजा फ्लेक्स करें एंड माउंटेन पोज, डाउन हील प्रेस किया तो दोनों पर एक्टिवली प्रेस करना, बाहर की तरफ हल्का को पुश करना है, हिप को छत की तरफ ऊपर उठाना। अगर आपकी कैपेसिटी है तो डायरेक्ट लेफ्ट लेग सेंटर आएगा, नहीं तो फिर मैंने जैसे बताया घुटना जमीन पे ड्रॉप करोगे एंड आपका माय मिस्टेक, माउंटेन अपोजिट लेग आ गया है, सेकंड स्टेप है, माउंटेन में से राइट लेग आगे नहीं, लेफ्ट पीछे की तरफ स्लाइड एंड नेक चेस्ट अप, दोनों पैर जॉइंट, हस्त पदासन, चारों पंजा एक लाइन, या तो आपका हाथ पैरों के अंगूठे, हिप को ऊपर की तरफ पुश करो, नेक खींचे बगैर दोनों घुटने के बीच में, दोनों नमस्कार मुद्रा में, हाथों का साथ में एंड बैकवर्ड, यहाँ पे समकोणासन रुकना नहीं है, कंफर्ट हो तो आपका स्क्रीन बड़ा करो भरत भाई, और मैं सिर्फ काउंट करूंगी, बाकी सब आसन करेंगे, ठीक है? आप सबका स्क्रीन बड़ा करो।
मैं सबको देख पाऊँ इस तरह से फुल स्क्रीन पे आप लोग ले लो। चलिए एक बार देखना चाहूंगी बिकॉज 2 बार मैंने अपना साथ में किया है। चलिए आ जाए आसन की किनारे पे। नमस्कार मुद्रा। हाथ और कान साथ में, बैकवर्ड, लेग जॉइंट है यहाँ पे। श्वास भरे भर के रोके 3 सेकेंड, ओनली 3 सेकेंड रुकेंगे कंप्रेशन लिए बगैर। बैकवर्ड एंड होल्ड 1 2 3। श्वास छोड़ना है सबसे पहले, स्पाइन को लेंथ दो। मनीषा डायरेक्ट नीचे आ गए। डाउन, हिप शोल्डर एक लाइन एंड होल्ड 3 सेकेंड। 1 2। अमित, मनीषा, मिस्त्री थोड़ा और नीचे जाए। 2 3 4 5 एंड डायरेक्ट डाउन। दोनों हाथ आपके पैरों के पंजे के अगल बगल एंड होल्ड। श्वास छोड़े, छोड़ के पेट अंदर। मनीषा गाय कर रहे हो। होल्ड 1 2 3। राइट लेग आगे, लेफ्ट पीछे, हल्का नी फोल्ड करके। नेक चेस्ट अप, तीनों पंजा एक लाइन, घुटने पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं चाहिए। नी एंड हील एक लाइन, पीछे वाला पंजा फ्लैट कर दो एंड होल्ड करो। 1 2 3। दोनों पैर पीछे, हाई प्लांक। दोनों पैर पीछे लिया तो हाथों की हथेली अच्छे से जमीन पे प्रेस। हमने रिस्ट की मूवमेंट कितनी की थी, वो स्ट्रेंथ के लिए किया था। दोनों पैर पीछे, हाई प्लांक एंड होल्ड। काफी लोगों की वीडियो बंद है, कैसे देखेंगे? एंड होल्ड, हाई प्लांक, नेक हल्का, नेक शेक करके दोनों हाथों के बीच में ध्यान, हिप शोल्डर एक लाइन, वेरी गुड एंड होल्ड। अंजू जी थोड़ा नीचे जा सकते हो। 1 2 3। धीरे से नी ड्रॉप करे जमीन पे, चेस्ट एंड चिन लगाए। अष्टांग नमस्कार, साष्टांग नमस्कार। हाथों की हथेली को प्रेस करो, पंजा फ्लैट करो, चेस्ट को लिफ्ट करो ऊपर की तरफ। भुजंगासन, कोबरा पोज। स्टमक को हल्के से ऊपर जब उठाया तो हिप पार्ट को जमीन पे प्रेस करो। शोल्डर रिलैक्स, नेक रिलैक्स। पर्वतासन, माउंटेन पोज। हिप को ऊपर छत की तरफ पुश करो। दोनों पैर एक्टिवली स्ट्रॉन्ग। जमीन पे जब प्रेस करते हो तो हाथों की एनर्जी को यूज करो। हैमस्ट्रिंग को बाहर की तरफ स्विच करो। अब अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो डायरेक्ट लेफ्ट लेग सेंटर में आएगा, दोनों हाथों के बीच में। अगर नहीं तो दोनों पैरों को पहले जमीन पे छोड़ो। वेरी गुड, होल्ड, नेक चेस्ट अप, श्वास भर के रोको। दोनों पैर जॉइंट, श्वास छोड़ के रोको। स्पाइन को लेंथ देते बैकवर्ड, ब्रीदिंग। समकोणासन, रुकना नहीं है, डायरेक्ट बैकवर्ड। परफेक्ट एंड नमस्कार मुद्रा, रिलैक्स। नेक्स्ट एक बार ब्रीदिंग अप, श्वास भरे बैकवर्ड। हिप पार्ट को, थाइस पार्ट को मेरी तरफ पुश करो। हल्का सा आर्च बैक, चेस्ट ओपन एंड 3 सेकेंड होल्ड। गाइड नहीं करना। हर्षा डाउन, समकोणासन, श्वास छोड़ी। समकोण, पारुल पटेल, समकोणासन। एक बार स्पाइन को लेंथ दो, हिप शोल्डर एक लाइन एंड स्लो डाउन। हस्तपदासन, चारों पंजा एक लाइन, लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग पीछे। अब लेग चेंज होगा। नेक चेस्ट अप, पीछे वाला पंजा फ्लैट एंड होल्ड। दोनों पैर पीछे, हाई प्लांक। हाई प्लांक में कोर एंगेज करो, टेलबोन जरा सा टक करो, आर्म पिट की एनर्जी को यूज करो, रिस्ट की एनर्जी को यूज करो। हिप शोल्डर एक लाइन। श्वास अगर छोड़ के रोक सकते छोड़ के रोकना, नहीं तो फिर नॉर्मल। हाई प्लांक में अगर आपकी कैपेसिटी है तो भर के या छोड़ के रोको, वरना नॉर्मल। नी, चेस्ट, चिन। अष्टांग नमस्कार, घुटना लगाए, चेस्ट लगाए, चिन लगाए। परफेक्ट। अब हल्का सा चेस्ट को लिफ्ट करने के लिए हाथों की एनर्जी को यूज करो एंड भुजंगासन, होल्ड। परफेक्ट। नेक कंफर्ट, शोल्डर हल्का एंड माउंटेन। पर्वतासन, हिप अप, पंजा फ्लेक्स। आपकी चेस्ट को, आपके स्टमक को थाइस की तरफ ले जाओ। भरत भाई, माउंटेन पोज। पर्वतासन, हिप अप, हिप छत की तरफ ऊपर। आप भुजंग में हो। अगला स्टेप भरत भाई, अगला स्टेप माउंटेन, नेक डाउन, अधोमुख श्वानासन। यस, आप समाधि में चले गए थे भुजंग में।
अच्छा, राइट लेग फ्रंट, अश्व संचालन, परफेक्ट। नेक्स्ट स्टेप, पीछे वाला पैर इतना स्लाइड करो कि आपकी हिप अच्छे से ओपन हो, दोनों पैर जॉइंट, हस्त पदासन, लेग जॉइंट, गुड रीता जी, परफेक्ट। हाथ और कान साथ में, बैकवर्ड, ऊर्ध्व नमस्कार, वेरी गुड, एंड नमस्कार, रिलैक्स। चलिए, विद स्माइल आपकी हिल पे वॉक करना है आपको। चार्ली चैपलिन का वॉक देखा है कभी? चार्ली चैपलिन को बहुत बार सभी सुना होगा। तो नी कैप को जरा भी बेंड नहीं करना और आपकी हिल पे इस तरह से वॉक करना। नॉर्मल श्वासों के साथ, अगर श्वास फूली है कोई भी एक्सरसाइज के बाद, तो ब्रेथ को सेट करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी श्वास बहुत ज्यादा फूली है तो मुंह से ब्लो कर सकते हो, नाक से भरना, मुंह से ब्लो करना, और इस तरह से हील वॉक करो। हील वॉक करने का सबसे बड़ा फायदा है, कभी हील पेन नहीं आएगा, कभी एंकल पेन नहीं आएगा, और खाया पिया अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो दिन में जैसे 2 एक्सरसाइज ऐसी है जो हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, उसमें से एक हील वॉक और एक ही वज्रासन। तो 2 एक्सरसाइज ऐसी है, कितना भी हैवी खाया है आप ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से 20 to 30 स्टेप इस तरह से हील पे प्रेशर एंड वॉक। हाल ही में किसी को हील का पेन है तो आज के दिन अवॉइड करें, धीरे धीरे 2-3 करते करते अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएं। चलिए, अभी टोस पे आ जाए एंड हील को उठा लो। फिर से आपका घुटना हल्का सा लॉक रहेगा, सॉफ्ट नहीं। नी को बेंड किए बगैर टोस वॉक, काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स बाहर की तरफ पुश, अच्छे से वॉक। नी को बेंड नहीं करना। अब ध्यान दो, अवेयर रहो कि आपका घुटना बेंड नहीं हो रहा। आप स्टेप कर रहे हो लेकिन अच्छे से काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स को यूज करके तो उसको प्रेस कर रहे हो। अब दोनों पैरों को ऐसे लास्ट फिंगर पे मोड़ दो, दोनों पंजा बाहर की तरफ खोल दो एंड स्टेप। यहाँ पे भी नी बेंड नहीं हो, लास्ट फिंगर पे छोड़, अपना पैर मोड़ दो, पूरा बाहर की तरफ खोल दो बुक्स की तरह एंड वॉक। लगभग 5 से 10 बार 10 स्टेप भी किया दिन का तभी भी बहुत अच्छा है। अब एक बार अंदर की तरफ, आप अंगूठे की तरफ ले लो एंड वॉक। आपके अंगूठे के ऊपर प्रेशर आए इतना अंदर की तरफ मोड़ दो एंड वॉक। ये भी आगे चल सकते हो, पीछे जा सकते हो, पैर को सिर्फ अंदर मोड़ना एंड रिलैक्स। हल्का हल्का मूवमेंट में, थाइस रिलैक्स, काफ रिलैक्स, हील रिलैक्स, पैर पूरा रिलैक्स, हिप से लेके हील तक पूरा पैर रिलैक्स। तो 20 to 30 टाइम थाइस को हल्का करो, काफ को हल्का करो एंड रिलैक्स। अपने आसन पे बैठ जाओ, सुखासन। सुखासन बैठ जाए। श्वास भरना है, दोनों हाथों को राइट नी पे रख देना, दोनों हाथों का पंजा राइट घुटने पे रख दो। सिर्फ स्पाइन को एक बार फ्री करो, फिर हम अगला आसन करते हैं। कोई भी आसन करते हो कहीं पे भी गलत वाला, गंदा वाला स्टेज नहीं चाहिए। एक पेन होता है जो हमें गुड फीलिंग देता है, एक पेन होता है जो हमें हर्ट करता है, हार्म करता है। तो वो आपको समझना है कि आपका बॉडी क्या बोलता है। श्वास भरे, चेस्ट ऊपर की तरफ उठाएं, आपका लेफ्ट घुटना जमीन पे प्रेस करें, राइट साइड ट्विस्ट होके आपके फॉरहेड को राइट घुटने पे लगाने की कोशिश करें। छोड़ा हुआ श्वास, फ्यू सेकंड रोके, 3 to 5 सेकंड रोके, तो स्पाइन को लंबा करें, राइट घुटने पे आपका फॉरहेड लगा दें। ध्यान रहे आपका अपोजिट पार्ट, लेफ्ट हिप्स, लेफ्ट नी जमीन पे प्रेस है। स्लो में श्वास भरें, श्वास छोड़ें, सेंटर। अपोजिट साइड, आपके लेफ्ट घुटने को पकड़ें। हर बार जहां पे आप बेंड करते हो उसका अपोजिट पार्ट अच्छे से जमीन पे प्रेस कीजिए। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, स्लो डाउन। पेट को हल्का अंदर खींचो, शोल्डर नेक रिलैक्स, धीरे धीरे नीचे जाए। साइड पे पूरा स्ट्रेच आएगा, हिप को उठने नहीं देना। अगर आपने हिप उठाया तो आपका 80% स्ट्रेच खत्म हो जाएगा। लेग डाउन, कम जाओ चलेगा लेकिन आपको हिप उठा के नहीं जाना। श्वास भरें, सेंटर एंड रिलैक्स। दोनों हाथ अपने अलग अलग घुटने पे। अभी यहाँ पे कंपल्सरी हिप को जमीन पे प्रेस करना है, फॉरहेड या टुडी को जमीन पे टच करना है। नहीं टच होता चलेगा लेकिन आपकी हिप को उठने नहीं देना। श्वास भरें, श्वास छोड़ें,
स्लो डाउन, पेट अंदर खींचिए, हिप माउंटेन का ध्यान देते हुए धीरे से नीचे एंड नॉर्मल ब्रीदिंग, नीचे की तरफ 5 हिप नॉर्मल। जब जब श्वास भरो हिप को जमीन पे प्रेस करो, जब जब श्वास छोड़ो स्पाइन को लंबा करो। 1 2 3 4 5 स्लोली दोनों तरफ खोल दो आसन से फिर हम करेंगे अष्टीनासन और फिर करेंगे प्राणायाम। दोनों को छोड़ हर आसन 2 बार करेंगे, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। दोनों पैरों की हील को मिला लो, अंगूठा मिला लो एंड पंजा एक्टिव। ना फ्लेक्स करना है ना पॉइंट करना, हील टोज एक लाइन, लास्ट फिंगर आपकी हील की लाइन में, अंगूठा आपकी हील की लाइन। श्वास भरो दोनों ऊपर, श्वास छोड़ोगे तो आपका हाथ कान साथ में चलेगा। जैसे हमने हस्तपदासन किया, हमारा हाथ आगे निकल गया, हमारी मुंडी पीछे रह गई, ऐसे नहीं करेंगे। हम काम जाएंगे लेकिन हाथ और कान की दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। श्वास भरते दोनों हाथ अच्छे से एक्टिवली ऊपर की तरफ, आपका आर्मपिट जो है कान से टच नहीं बट कान की सीधी है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से आपके स्पाइन को टेलबोन से ऊपर उठाते हुए, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर खींचो, हल्का डाउन, ज्यादा नहीं जाता। ब्रीदिंग, हल्का डाउन, ब्रीदिंग, हल्का डाउन, ब्रीदिंग, हल्का डाउन। हो सकता है सबसे पहले आपका टमी थाइस पे लगे, फिर चेस्ट लगे, और फिर धीरे से एल्बो को जमीन पे ड्रॉप कर दी एंड 10 सेकेंड नॉर्मल ब्रीदिंग। पश्चिमोत्तानासन, आपकी स्पाइन को लेंथ देना, बने रहना वहीं पे, वापस नहीं आना। 10 सेकेंड वहीं पे नॉर्मल श्वास भरे छोड़े, भरत भाई उठना नहीं, होल्ड। 1 नीचे की तरफ बने रहे, ब्रीथ आउट। 2 जब जब श्वास भरो हिप जमीन पे प्रेस, जब जब श्वास छोड़ो स्पाइन को लेंथ दो, ब्रीथ आउट, परफेक्ट। 3 ब्रीथ आउट, आपके एल्बो ड्रॉप करो पारुल, ब्रीथ आउट। नेक बाद में जाएगा, मुंडी घुटने पे बाद में जाएगा, चलेगा। एल्बो कंपलसरी सबसे पहले लगाओ, सबसे पहले स्टमक लगा, फिर चेस्ट लगा, फिर एल्बो लगा, फिर मुंडी। अब धीरे से स्पाइन को लेंथ दो एक बार, स्लोली अप, स्लो अप, उठे, ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट, रिलैक्स। श्वास भर के वापस आ जाना है, साथ में एक बार, साथ में सेम रिपीट, ब्रीदिंग, हाथ ऊपर। साथ में कर नहीं रही हो लेकिन जो बोल रही हो तो कान खुले हैं, एक्सरसाइज अपनी है लेकिन अपने कान खुले तो अच्छे से सुनाई देता है। श्वास भरेंगे, आपका आर्मपिट एंड कान साथ में, श्वास छोड़ो पेट अंदर एंड जरा सा डाउन, ब्रीथ आउट। फिर से एक बार वहीं पे श्वास भरो, ब्रीथ आउट। भागना नहीं है, मेरा राजधानी की तरह, ब्रीथ आउट। स्टेशन करना है, 2 स्टेशन करना है व्रत भाई, ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट। रुकना है, धीरे धीरे नीचे जाना है, ब्रीदिंग, गुड बकुल भाई, ब्रीथ आउट। लास्ट, ब्रीथ आउट एंड ड्रॉप स्लोली डाउन। एल्बो जमीन पे ले जाए, फिर अपनी मुंडी घुटने की तरफ या चिन बॉन की तरफ एंड होल्ड, परफेक्ट। 10 सेकेंड, 1 ब्रीथ आउट। आपका हिप जमीन पे प्रेस, स्पाइन को लेंथ दो, 2 ब्रीथ आउट, 3 ब्रीथ आउट, 4 ब्रीथ आउट, 5 ब्रीथ आउट। धीरे से अपना हाथ जमीन से छोड़े, श्वास भरे, सिंगल श्वास में उठ जाए, ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट, रिलैक्स। जब भी पश्चिमोत्तानासन किया तो इसका विपरीत या तो ट्विस्टिंग कर लो या तो आपकी स्पाइन को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर लो। तो हम आज करेंगे पार्श्वकोणासन, ऊपर की तरफ उठेंगे हम। कि जब जब हम ऊपर की तरफ उठेंगे तो स्पाइन जो लंबा किया था आपने, फिर से एक बार अलाइनमेंट में जाता है। तो बैक से रिलेटेड, नेक से रिलेटेड, शोल्डर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आपकी निकल जाती है। राइट लेग को फोल्ड करो इस तरह से, आपका राइट लेग फोल्ड करें, आपके दोनों हाथों को हिप्स के पीछे, आप जहां कंफर्ट हो वहां पे रखिए। उंगलियां चाहे अंदर चाहे बाहर, दोनों सही, कोई गलत नहीं। आपको अगर इस तरह से जम रहा है तो आप रिस्ट की एनर्जी यूज करोगे, आपको अगर इस तरह से जम रहा है तो आप शोल्डर की एनर्जी यूज करोगे। ठीक, तो इसमें दोनों पोस्चर सही है, कोई गलत नहीं कि हम लोग फिंगर ऐसे रखिए या ऐसे रखिए, वो आप जैसे कंफर्ट हो, आपकी जहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा है वैसे रखना। राइट लेग को फोल्ड करें, राइट लेग का हील जो है आपके लेफ्ट नी के बगल में आ जाएगा। ठीक, आपका लेफ्ट नी एंड राइट हील एक लाइन में, दोनों पैरों में हल्का फासला रखना है, बिल्कुल भी जॉइंट नहीं करना आपका हील एंड नी, हल्का फासला। श्वास भरे, आपका सीधा पैर जो है टोस पॉइंट करे सबसे पहले,
जो लेफ्ट लेग का पैर अपना टोज है वो पॉइंट करे एंड सिंगल श्वास में ऊपर की तरफ उठ जाए। रेडी? नेवल को जरा अंदर खींचो, नेक ड्रॉप करो पीछे की तरफ एंड होल्ड। शोल्डर को नीचे स्ट्रेच करो एंड 3 ब्रीथ लॉन्ग। 1 breathe out, let strong active 2 breathe out 3 slow down and opposite। आपका लेफ्ट लेग फोल्ड करिए, लेफ्ट लेग का हील राइट लेग का नी एक लाइन में अच्छे से टोस पॉइंट करें, जो पे सीधा है। श्वास भरें, श्वास भर के उठें, ब्रीदिंग, पेट हल्का अंदर रखें एंड होल्ड। नेवल से जरा सा पेट अंदर रखें। 1 लेग बैक 2 3 स्लो डाउन, रिलैक्स। आज का लास्ट आसन, सो जाए। जब भी कोई भी वर्कआउट करते हो तो बॉडी को रेस्ट देना बहुत जरूरी है, काउंटर पास करना बहुत जरूरी है, ताकि पूरा दिन आपका अच्छा जाए। दोनों पैर फोल्ड कर ले, इन दोनों हाथों को टी शेप में रखें, लेट जाए। आप अगर लेटे हो, आंख बंद ही है, फिर भी अगर कान खुले तो आवाज से आप मूवमेंट कर सकते हैं। दोनों हाथ शोल्डर लाइन स्ट्रेच कर ले, आमने सामने सॉरी इस टाइम रेस्ट में खींच ले, हथेली जमीन पे प्रेस करें, दोनों पैर घुटने से फोल्ड करें। वक्रासन ट्विस्ट, ये आसन आप कभी भी सोने से पहले करो और सुबह जब उठते हो तो बेड छोड़ने से पहले करें। आपका स्पाइन अलाइनमेंट में रहेगा, आपकी बैक साइड से जो भी प्रॉब्लम हो निकल जाएगा। श्वास भरे, पैर सेंटर में है, श्वास छोड़े, राइट साइड ड्रॉप करो, ब्रीथ आउट, दोनों घुटना राइट साइड में करना एंड देखना लेफ्ट साइड। पेट हल्का सा अंदर रहेगा, हील अंगूठा घुटना तीनों एक लाइन में एंड नॉर्मल ब्रीथिंग 3 टाइम। होल्ड 1 breathe out 2 breathe out 3 धीरे से श्वास भरें, सेंटर आ जाए। फिर से आपका हिप में एक लाइन आ गया, दोनों हाथों की हथेली जमीन पे प्रेस, श्वास भरे सेंटर में, श्वास छोड़ते लेफ्ट साइड लेटा दें। दोनों घुटना जब लेफ्ट साइड गया तो आपका नी, आपका हील, आपका अंगूठा तीनों मिला हुआ। देखना राइट साइड, दोनों शोल्डर ना उठे, एल्बो ना उठे, पाम ना उठे एंड होल्ड। 3 श्वास कॉमन। 1 2 3 सेंटर। श्वास भरी, दोनों पे 90 पे उठा दी, पंजा छत की तरफ फ्लेक्स, दोनों पंजे से जैसे ऊपर की तरफ छत की तरफ प्रेस करें, उस तरह से मूवमेंट में हल्का सा बेली के आसपास, नेवल के आसपास कंप्रेशन को फील करें, टेलबोन जमीन पे प्रेस करें, शोल्डर जमीन पे प्रेस करें, फिर भी नॉर्मल। 1 ये आसन आप वॉल की सपोर्ट से भी कर सकते हो, आपके हिप को वॉल के साथ लगा दो, इन दोनों पैरों को वॉल के ऊपर रखें। तो ये वॉल के साथ भी बहुत अच्छा आसन होता है। जब वॉल के सपोर्ट से करते हो तो नॉन स्टॉप आप 10 मिनट भी रुक सकते हो। 2 3 दोनों पैरों को फोल्ड कर ले, दोनों हाथों से अपने आप को रखो, अपने दोनों घुटनों को अंदर की तरफ रखो। पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन जो आसन है, आपके अंदर सालों पुराना गैस भी जमा पड़ा है, वो बाहर की तरफ रिलीज कर सकता है। तो बेस्ट आसन है, लेकिन पेट खाली होना बहुत जरूरी है। बड़े पेट के साथ सिर्फ 2 ही आसन कर सकते हैं, वॉक और वज्रासन। बाकी हर एक्सरसाइज आप खाली पेट करना है, खाली पेट यानी 3-4 घंटा हो गया हो खाना खाना, उस टाइम पर मैं सुबह जब अर्ली मॉर्निंग किसी को आदत है तो पेट साफ होना चाहिए। और छोटी छोटी जो टिप्स है उसको याद रख के अगर करोगे तो आपका शरीर इंटरनल 100% स्वस्थ होगा, शुद्ध नाड़ियां होती है तो ऑटोमेटिक आपका मनोबल स्ट्रॉन्ग होता है, शारीरिक बल स्ट्रॉन्ग होता है। दोनों पैरों को घुटने को चेस्ट की तरफ प्रेस करना, टेलबोन को यानी कि स्पाइन पे जमीन पे प्रेस करना। पवन मुक्तासन में सिर्फ एक ही नियम है कि आपकी स्पाइन टेलबोन से उठनी नहीं चाहिए। जो लोअर की हड्डी है, अपनी रीढ़ की लोअर की लास्ट हड्डी है, वो जमीन से ऐसे उठाना नहीं, उसको प्रेस करते रहो, घुटने को चेस्ट की तरफ। आंखें बंद कर दो, नॉर्मल श्वास भरे छोड़िए। 1 जब जब श्वास छोड़ो तो आपकी स्पाइन को जमीन पे प्रेस करो, जब जब श्वास भरो तो घुटने को चेस्ट की तरफ दबाओ। धीरे से हाथ छोड़िए,
जमीन पे पैर छोड़ दो एंड दोनों पैरों में आसन फासला बिल्कुल शवासन चले जाए। 3 मिनट का शवासन जैसे 2-3 घंटे की नींद होगी, इतना रिलैक्सेशन ले खुद के अंदर जुड़ जाए, क्योंकि श्वासों के साथ जुड़ जाए। अपनी लाइफ आती जाती श्वासों को देखें, पूरा शरीर हल्का करें हेड टू टो। जहाँ पे आपका ध्यान है हर मसल्स को शिथिल करें, ढीला करें। 2-3 श्वास अवेयरनेस के साथ करें, कि नेचुरल ब्रीथ जैसे आ रहा है जैसे जा रहा है उसको देखते रहे। बंद आंखें बंदे बाहर की एनर्जी से कट हो जाए और इंटरनल एनर्जी से जुड़ जाए, अंदर की तरफ जो एक्टिव एनर्जी उसके वाइब्रेशन को देखे, वेव को देखे, लाइटनेस को देखे, वार्मनेस को देखे, जो भी फील होता है बंद आंखों से देखते रहे। कुछ नहीं समझ आ रहा है तो नीचे आंखें बंद करें, प्लीज मसल्स रिलैक्स, चेस्ट मसल्स रिलैक्स, नेवल के आसपास सारे ऑर्गन्स रिलैक्स, pelvic part, LH part, high part, knee part, calf part, heel part, पूरा पैर में मसल्स शोल्डर पर ध्यान देकर शोल्डर रिलैक्स, elbow रिलैक्स, wrist, palm, upper back, middle back, lower back, tailbone, hurting the system, there are these five. जितना आपका स्ट्रॉन्ग संकल्प है, आपकी श्वासों के साथ जो जुड़ते हो और जो सोचते हो मिलता है। मन चाहा हुआ रिजल्ट आपके पास होता है। अगर खुद की एनर्जी को जान लो, अंदर की शक्तियों को पहचान लो, रोते रहेंगे कुछ हासिल नहीं होगा, मेडिसिन खाते रहेंगे कहीं ना कहीं हार्मफुल है। तो क्यों ना अपनी सांसों से जुड़ जाए, क्यों ना अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाए। कुदरत ने हमारे अंदर खजाना दिया, खोजना कौन सा खजाना कहाँ पे यूज करना, ऑटोमेटिक समझ पाओगे, देख पाओगे हमारे क्या अच्छा क्या बुरा, चूज कर पाओगे, सही वे को चुन पाओगे तो आपके एनर्जी के साथ जुड़ जाओगे। सिंगल श्वास बड़े चेहरे पे रोके, पूरा श्वास चेहरे से ही छोड़े, नौसियों भरी जो अपने 24 घंटे जैसे अपनी श्वासों के साथ। लेकिन जब आपका ध्यान है, आप जहां से चाहो जहां से भरो एंड छोड़ो, उस पार्ट से ही भरो। जैसे चेहरे से हमने भरा तो फेस मसल्स को रिलैक्स करते हुए श्वास छोड़ो। श्वास भरे अपना गले पे रोके, थोड़ी चक्कर पे गले पे वार्मनेस फील करे, वाइब्रेशन को फील करके धीरे से गले से छोड़ो। जहां पे पार्ट को शिफ्टिंग करोगे, मसाला हल्की छोड़ोगे, उसी जगह से एनर्जी बाहर की तरफ फ्लो होती है। अंदर जो आपने श्वास ली, प्राण एनर्जी को लेके गई और जो श्वास वहीं से बाहर निकली, तो वहां की हर एनर्जी बाहर की तरफ रिमूव करती है। श्वास बड़े चेस्ट पे रोके, चेस्ट पे एनर्जी को एक्सपांड करो, शोल्डर पर चेस्ट मसल्स को हल्का छोड़ने की श्वास करो। श्वास भरे नेवल पे रोके, सारे ऑर्गन्स को हल्का करें, नेवल से छोड़ो। श्वास भरे फ्रंट थाई पे, pelvic part पे, पेनिस पार्ट पे, श्वास से थाई मसल्स को हल्का मिला जाता है, वार्म एनर्जी को फील करें। श्वास भरे नी कैप पे, शिन बॉल पे, पैर पे, पंजों पे, पूरा वाइब्रेशन देखिए, लाइट एनर्जी को देखिए। श्वास छोड़ो, नी कैप हल्का, शिन बॉल हल्का, भरी हुई श्वास हिप पार्ट पे, हैमस्ट्रिंग पे, घुटने के पीछे की नस नाड़ियों पे, काफ मसल्स पे। श्वास छोड़े, हिप पार्ट, थाई पार्ट, काफ पार्ट, नी पार्ट बिल्कुल शिथिल।
दोनों पैर 100% स्वस्थ। श्वास भरी बैक नेक पे ध्यान, स्पाइन पे एनर्जी का फ्लो एंड टेलबोन से श्वास रिलीज, स्पाइन 100% स्वस्थ। श्वास भरी दोनों शोल्डर पे, शोल्डर ब्लेड, आर्महोल, एल्बो, रिस्ट, पाम। श्वास छोड़े, शोल्डर से लेकर हाथों के अंदर तक लाइट ऊर्जा को फील करते पूरा श्वास। सिंगल श्वास एक बार प्राण से भरे, पूरे शरीर में वाइब्रेशन को फील करें, लाइट एनर्जी को फील करें, पैरों की कंधों से छू। दोनों पैरों की उंगलियों को मूवमेंट दें, दोनों हाथों की उंगलियों को मूवमेंट दें, हल्का हल्का अपने हाथों को हिलाएं। शीतल शरीर में लाइट एनर्जी का वेग है और जब मूवमेंट देते हैं फिर से पूरा बॉडी एक्टिव। दोनों पैर पास पास रख, दोनों पैर हल्का फोल्ड करके राइट साइड टर्न करते, राइट साइड टर्न करें और सिंगल भी राइट साइड टर्न करके घोड़े छोड़े। लेफ्ट हैंड का सपोर्ट लें, धीरे से उठ के बैठे। सुखासन, वज्रासन, जो मर्जी आसन ले। पूरा शरीर लाइट, जब बॉडी पूरा लाइट पे विचारों से मन मुक्ते हैं, ऑटोमेटिक हमारे फेस के ऊपर मुस्कुराहट वाला भाव। उसी मुस्कुराहट के साथ हम कपालभाति करेंगे 108। अगर जिसकी कैपेसिटी है 108 कंटिन्यू करेंगे, वरना मैंने जैसे रेशियो बताया या तो 54-54 का 2 राउंड या तो 27 का 4 राउंड। अगर आप अच्छे से कंफर्ट हो, आपके अंदर अगर अल्सर का कभी प्रॉब्लम हुआ है, हर्निया का कभी प्रॉब्लम हुआ है, हाई बीपी है, तो कपालभाति को ज्यादा नहीं करना, कम करना। 5 किया रुक गए, 10 किया रुक गए, 12 किया रुक गए। तो आपकी कैपेसिटी को देखते हुए आगे की तरफ हमें बढ़ना है। लेकिन जो नॉर्मल है, रेगुलर प्रैक्टिशनर है, ज्ञान मुद्रा बनानी, फर्स्ट फिंगर को आपके अंगूठे के साथ मिला लें। शोल्डर से अपने हाथों को बिल्कुल हल्का छोड़े, एल्बो को जरा फोल्ड करें, हिप को जमीन पे प्रेस किया, नी को जमीन पे प्रेस किया। पोस्चर आप चाहे जो लो, वज्रासन, सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन, टेक के भी बैठ सकते हो, चेयर पे भी बैठ सकते हो, सोफे पे भी बैठ सकते हो, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी कि आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए। स्पाइन सीधी इसका मतलब शोल्डर हमारा लॉक है, नेक हमारा लॉक है, ऐसा नहीं। शोल्डर नेक बिल्कुल रिलैक्स, स्पाइन सीधा, शोल्डर को जरा सा हिप लाइन पीछे की तरफ प्रेस करें ताकि आपकी सोलर एनर्जी ज्यादा एक्टिव रहे। हमें लुढ़क के प्राणायाम नहीं करना, हो सके इतना शोल्डर एक लाइन रही। कोशिश करें ऑटोमेटिक आपकी एनर्जी टेलबोन से नाभि से उठे। श्वास एक बार लंबा भरे, फेस में से रिलैक्स करें, फिर से एक बार भरे, कपालभाति स्टॉप लगाएंगे। अपना रेशो खुद देखिए, अपनी लय खुद देखिए, आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप खुद करेंगे। स्टार्ट, कंटिन्यू करते जाए। कपालभाति स्टॉप जब लगाते हो, फेस मसल्स खराब नहीं होना चाहिए, चेहरे के मसल्स को खराब नहीं करना, नाक को बहुत ज्यादा सिकुड़ना नहीं, आईब्रोज को बहुत ज्यादा सिकुड़ना नहीं, फेस की एनर्जी आप यूज नहीं करनी। नेवल पे हल्का हल्का जब, कपालभाति यानी मिरेकल प्राणायाम। एक्सहेलेशन पे पूरा फोकस, इनहेलेशन अपने आप हो जाता है। पूरा ध्यान से करते रहिए, स्लो करे, फास्ट करे, मिरर करे, आपकी मर्जी, जैसे आपकी कैपेसिटी। लेकिन आपका बॉडी मूवमेंट ना हो, सिर्फ नेवल पे हल्का हल्का अंदर की तरफ जग फील। जग भी ऐसा नहीं कि आपके शोल्डर पे तनाव, नेवल की ऊर्जा हो, नाभि की अंदर की जो सोलर एनर्जी की रिदम है, जो कुदरत ने हम पैचोटी बोलते हैं गुजराती, तो उस एनर्जी को हमें एक्टिव रखना। क्योंकि हम जब इस दुनिया में भी नहीं आए थे, उस टाइम हमने नेवल से ही प्राण एनर्जी दी, तो प्राण एनर्जी आपके अंदर बरकरार है। आप बस करते रहिए, ध्यान देते, उस थ्रोबिंग को फील करें। हार्ट बीट के जैसा ही नेवल के आसपास थ्रोबिंग है, उसको देखिए। जब 108 कंप्लीट हो जाए, आप रेस्ट ले लीजिए। कपालभाति में श्वास भरने पे फोकस बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ बाहर की तरफ स्टॉप लगेगा। तो इसको फास्ट स्लो आप आपकी मर्जी से कर सकते हो। सिंगल भी नॉर्मल भरें, पूरा छोड़ें, राइट नोस्ट्रिल को बंद करें। आपका राइट अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल बंद करें। राइट हैंड की 2 फिंगर को आप दोनों भंवर के बीच में, लेफ्ट हैंड जो खाली पड़ा है उसको प्राण मुद्रा में ले लें। दोनों लास्ट फिंगर को आपके अंगूठे के साथ मिला लें। आपके अंदर जो एनर्जी एक्टिव है, इसको अंदर सेव करने का काम करता है अनुलोम विलोम।
बंद नाड़ियों को खोलने का काम करता है अनुलोम विलोम। नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोलते हैं। आपकी चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी दोनों एक्टिव रहती है। जब दोनों नाड़ियां एक्टिव हो, आप जो कार्य करते हो उसका आप सिर्फ करता रहते हो, आप उसको मैं जो है निकल जाता है। जिसकी दोनों नाड़ियां बैलेंस है, मैंने किया वाला भाव दूर हो जाता है। तो सरेंडर रहना अगर कुदरत की तरफ, तो अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करें। श्वास भरे लैब से धीरे धीरे ब्रीदिंग विदाउट साउंड स्लो। जहां पे दो फिंगर रखे वहां तक एनर्जी को फील करें दोनों आईब्रोज के बीच में। लेफ्ट मसल को बंद करें, राइट मसल से श्वास छोड़ें। राइट से श्वास भरें, राइट मसल को बंद करें, लेफ्ट से छोड़ें विदाउट साउंड। बहुत ज्यादा साउंड नहीं चाहिए भरने का, छोड़ने का, जर्क नहीं चाहिए। लेफ्ट से भरें 2 राउंड और, राइट से छोड़ें, राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें। लास्ट राउंड से लेफ्ट से भरें, राइट से छोड़ें, राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें। मुद्रा छोड़ दो, हाथ उठा दे, दोनों हाथों के ऊपर आकाश की तरफ ओपन। 3 टाइम श्वास भरोगे, नॉस्ट्रिल से भरोगे जो श्वास हो, गले पे फील करना, गले से चेस्ट नहीं भरोगे। फ्यू सेकंड लेवल पे रोकना, फिर जब श्वास छोड़ोगी तो लेवल से फिर से खाली होगा, लेवल से, चेस्ट से, गले से, नॉस्ट्रिल से। तो इस रेशियो के साथ श्वास अंदर, इसी रेशियो के साथ श्वास बाहर। सी बनेगा, उल्टा सी। नॉस्ट्रिल से भरना स्टार्ट करेंगे, एक बार पूरा श्वास खाली करके बाहर की तरफ। सिंगल राउंड करेंगे, हमारा टाइम कंप्लीट होने आ रहा है। श्वास भरना शुरू करें नॉस्ट्रिल से, ब्रीदिंग और गले पे फील करें, ब्रीदिंग छोड़ना नहीं है। और गले चेस्ट पे फील करें, ब्रीदिंग पूरा भरे, नेवल पे फील करें, ब्रीदिंग पेट पे फुगे की तरह बाहर फुलाए। 3 सेकंड रोके, 1 2 3। सबसे पहले स्टमक से खाली करें, पेट से खाली करें, विदाउट, एक साथ नहीं छोड़ना। चेस्ट पे आए, चेस्ट को खाली करें, गले पे आए, गले पे वार्मनेस फील करें, नॉस्ट्रिल से बाहर। सिंगल राउंड अवेयरनेस के साथ खुद से कर लो, एटलीस्ट समझ आएगा तो हफ्ते भर प्रैक्टिस कर पाओगे। श्वास भरे नॉस्ट्रिल से, गले पे फील करके फिर से भरे, चेस्ट पे फील करें, स्टमक पे रोके, पूरा श्वास नेवल तक रोक ले। सबसे पहले पेट खाली करें, श्वास छोड़ते तो नेवल से बाहर, विदाउट चेस्ट तक, चेस्ट खाली करें, गले तक, गला खाली करें पूरा, और नॉस्ट्रिल से बाहर। 3 राउंड भ्रामरी साउंड जो हमने लास्ट टाइम किया था, हमिंग साउंड। हमिंग ही नॉन स्टॉप आप अगर 6 मिनट करते हो, आपकी याददाश्त पे बहुत फर्क पड़ता है, आपके विचारों पे कंट्रोल होता है, पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर रहते हैं, नेगेटिव वाइब ऑटोमेटिक रिमूव हो जाते हैं। तो फर्स्ट फिंगर आपने अंगूठे को कान पे लॉक करें, फर्स्ट फिंगर को आईब्रोज के कॉर्नर पे, सेकंड फिंगर को आपके आईज के कॉर्नर पे, थर्ड फिंगर को नॉस्ट्रिल की लाइन पे, एंड फोर्थ फिंगर को लिप्स की लाइन पे। तो ये हो गई षण्मुखी मुद्रा। भ्रामरी में मुद्रा का बहुत ज्यादा महत्व नहीं, लेकिन वाइब्रेशन जो लेते हो अंदर की तरफ, जो वाइब्रेशन उठता है उसके ऊपर पूरा फोकस। ब्रीदिंग, इसे बार ब्रीदिंग,
सिंगल श्वास नॉर्मल भरे छोड़ी, अंदर की एनर्जी जो अंदर की तरफ सही रहेगी। दोनों हाथों को पीछे की तरफ इंटरलॉक करो। सिंगल ओंकार, ओंकार के साथ साथ समर्पण भाव के साथ साथ झुक जाना प्रकृति की ओर। जब भी आप झुकते हो तो ना सिर्फ झुकना, अंदर के सारे रोग विकार नेगेटिविटी बाहर की तरफ खाली कर देना, प्रकृति को सौंप देना। ब्रीदिंग। पूरा खाली होने का बाद अंदर के सारे रोग विकार नेगेटिविटी बाहर की तरफ ले। स्ट्रॉन्ग संकल्प करें, जो भी हार्मफुल चीजें हमारे मन को शरीर को वो बाहर की तरफ समर्पित कर रहे हैं, ब्रह्मांड को सौंप रहे। यूनिवर्सल की पॉजिटिव वाइब्स को फील करें। नई सांसों के साथ धीरे से उठें। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा, दोनों हाथों को अच्छी से रब करो। हाथों की हथेलियों का घर्षण, हाथों की हथेली का तलवा, जब बॉम्ब लगे ऊर्जा को आंखों में लगे। हथेली का तलवा आपकी आठों उंगली आपके फॉरहेड पे। दोनों कवर के बीचों बीच एक्टिव एनर्जी को देखें। धीरे से प्रेस करें, बाहर की तरफ स्लाइड करें। ओपन ऊर्जा को देखें, कलरफुल वाइब्स को देखें। कानों को टच करें, पूरे चेहरे को, गले को, पूरे शरीर को। आपकी एनर्जी से पूरे शरीर को 100% स्वच्छता मिले। दोनों हथेलियों का अर्धचंद्र बनाएं। आँख खोलने से पहले संकल्प करें, जो भी ऊर्जा आपके अंदर एक्टिव है आपके अंदर सेव रहे, 24 घंटे आपको सपोर्ट करें। धीरे से आँख खोलें और दृष्टि चारों रोटेट करें। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आईब्रो को घुमाएं और मुस्कुराहट के साथ दूसरे को देखें। थैंक यू सो मच। ओके, कंफर्ट सर। સંગીતા, ખૂબ ખૂબ આભાર. 30 જણા છે આપણી સાથે અત્યાર સુધી અને ખૂબ જ મજા આવી. અને બકુલભાઈ સાથે વાત થઈ હતી કે આપણે તમે સૂર્ય નમસ્કાર તો કરો છો કે અમારે ઇન્ટેન્સ સૂર્ય નમસ્કાર કરવા છે. તમે કીધું આજથી લાઈવ સેશન શરૂ કરશે અને ધીમે ધીમે આપણને અચ્છા બોલો. હવે 5 મિનિટ આપણે ચર્ચા કરીશું, એટલે 5-7 મિનિટ જેને વાત કરવી હોય સંગીતાબેન સાથે વાત કરી શકો છો. પહેલા તો સેશનમાં કમ્ફર્ટ છો, આપણે જે કરી રહ્યા છે એમાં બધા કમ્ફર્ટ છો? એકદમ અમારું ગ્રુપ બરાબર કમ્ફર્ટ છે. ઓકે બકુલભાઈ. બીકોઝ કેવું હોય કે ઓનલાઈન હું વધારે રિસ્ક ના લો. અગર તમારું બોડી મારા સામે છે, આપણે આમને સામને ઓફલાઈન કરીએ છીએ તો હું તમારું બોડી વાંચી શકીશ. અહીંયા આપણે આટલા લોકો હોય તો આપણે જોઈ ના શકીએ. તો ઘણીવાર એવી થાય કે હાર્મફુલ કર્યા કરતા આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ વધીએ, કેમ કે સૂર્ય નમસ્કારના લોટ્સ ઓફ વેરિએશન છે. બટ આપણને એવું લાગે ને કે આપણું બોડી જેટલું માંગે છે એનાથી થોડું ઓછું આપે, તાકી આપણે નેક્સ્ટ ડે ફ્રેશ ઉઠીએ. બરાબર છે? અને ધીરે ધીરે આગળ વધવાથી એનર્જી અંદરની તરફ સેવ થાય, સ્પ્રેડ ના થઈ જાય. ઘણીવાર એવું થાય કે કોઈ ક્રેમ્પ, કોઈ મસલ સ્પૂલ આપણને 2-3 મહિનાનો રેસ્ટ આપી દે. તો બેટર આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ વધીને ધીમે ધીમે આપણા બોડીને સમજતા એક્સરસાઇઝ સ્ટાર્ટ. બરાબર છે? બાકી એક્સરસાઇઝ તો અઢળક છે, તમને બી ખબર છે. લગભગ 7,000 થી વધારે આસનો છે. આપણે એની ટાઈમ કરી શકીએ, બટ વીકમાં એક દિવસ છે તો આપણે અનુકૂળતા પ્રમાણે, લાઈક મને જેટલું લાગે છે એઝ અ ટીચર, મને જે લાગે છે હું ધીરે ધીરે આગળ ચોક્કસ. થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ. પરફેક્ટ સેશન હતું. અને કોઈને કઈ વાત કરવી હોય તો સંગીતાબેન સાથે વાત કરી શકે છે. જેને માઇક અનમ્યુટ કરીને વાત કરવી હોય તો આપણી પાસે 2-3 મિનિટ છે હજી. વોઇસ નથી અંજુબેન? યસ, have a problem. અંજુબેન, તમારો વોઇસ આવતો જ નથી. બીજા અન્ય કોઈ વાત કરવા માંગતા હોય તો. Okay, thank you.
સંગીતાબેન ખરેખર મજા આવે છે અને તમે જે ટેકનિક બતાવો છો પેલો હાથ કાન કી દોસ્તી કી ઓ ધેટ્સ વેરી નાઇસ. थैंक यू सो मच. छोटी छोटी टेक्निक ही है जो अवेयर करती है. તમારી ઇન્સ્ટ્રક્શન યાદ રહી જાય એવી છે. અમે પણ તમારા શબ્દનો ઉપયોગ કરીશું કે ભાઈ હાથ ને કાન ની દોસ્તી રાખો. Yes. It's very simple but it has a very lot of effect. Okay, thank you. Thank you, Sangeeta aunty. Thank you, Anya. સૌથી વધારે અમને લોકોને છે ને ઇન્ડિયામાં વિઝિટ કરી આવ્યા હોય ને એટલી એવી ફિલિંગ આવે છે તમને ત્યાં બેઠેલા જોઈને. સરસ સરસ. મને પણ ગમ્યું તમે લોકો યોગમાં આટલા અવેર છો. એકચ્યુઅલી ના બહુ મજા આવે છે. અમે બધા એન્જોય કરીએ છીએ બહુ. એકચ્યુઅલી લાસ્ટ ટાઈમ મેં એકલીએ કર્યું હતું. આજે મારા હસબન્ડ પણ સાથે હતા અને એમણે પણ ખૂબ જ એન્જોય કર્યું છે. સો થેન્ક યુ સો મચ. સરસ. આ બધા અમારા રાખડીબંધ યોગી છે બધા. ઓકે. સારું સારું. તમારું આટલું સરસ ગ્રુપ છે અમેરિકામાં. જો સાંભળીને જોઈને આનંદ થયો મને. પણ અત્યારે જો સંગીતાબેન અત્યારે મુંબઈ થી પણ અમારા યોગીઓ બેઠા છે. બરાબર છે. પારુલબેન અને બે ત્રણ ફેમિલી મિડલ ઇસ્ટ છે. બધા અમારા યુએસ યોગા ગ્રુપમાં છે બધા. સરસ સરસ. આ તમારું ઓપન ગાર્ડન છે ઘરની બહાર? ના આ વર્ચ્યુઅલ સ્ક્રીન છે મારો. સંગીતા છે ને બિપિન બકુલભાઈ વિરડિયા એ મલ્ટી એક્સપર્ટાઇઝ ધરાવતા માણસ છે. સોફ્ટવેરનું કામ બરાબર ને કાંતિભાઈ? ભરતભાઈ હું હવે જાઉં છું. બાય. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ. બાય બાય. આજે ને અમને બકુલભાઈને કેવું કહેવાય કે રસોયાનું કામ સોંપો કે બીજું કામ સોંપો બધા જ પ્રકારના કામો આવડતા હોય. અમારી પાસે હથોડી બી છે. ગમે ત્યારે જોતું હોય તો હથોડી બાજુમાં જ રાખો. ઓલરાઉન્ડર કહેવાય એને બકુલભાઈ. ભરતભાઈ વાત કરી હતી ને મેં બકુલભાઈ ની કે કોઈ પણ ને અમે બધા સીઝન નો ધંધો કરી લઈએ. ના જરૂરી છે. આજકાલ લાઈફસ્ટાઈલ ને મેન્ટેન રાખવા માટે જરૂરી બી છે. Yes, you have to be flexible. Yeah. Okay, thank you so much. Bye. મળીએ next Saturday. Thank you સંગીતા. Thank you. આભાર. ખૂબ આભાર.